औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश. तो फिर से आज हमें पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रोफ इन द मेकिंग. पेज नंबर 20 से पढ़ना है आज हमें. तो लेट अस बिगिन नाउ डियर स्टूडेंट्स. In Jammu and Kashmir, the Energy and Resource Institute (TERI) has selected the Kulhai Glacier in the West Ladder Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. Ladakh Valley covers an area of more than 1,200 square kilometers and it sustains about 48 glaciers covering an ice-covered area of 39 square kilometers. It's important to establish an index glaciers in this region for assessing the water source availability in the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glaciers will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. तो जम्मू और कश्मीर में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TERI ने वादी लेदर के मगरब में कोलहाई ग्लेशियर को लंबे अरसे की निगरानी के लिए इंडेक्स अलामती ग्लेशियर की शक्ल में चुना है. वादी लेदर 122 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैली हुई है और ये 48 ग्लेशियर्स को बरकरार रखने वाली है जो 39 मुरबा किलोमीटर वाले बर्फीले इलाके का अहाता करता है. इस इलाके में वादी में रहने वाली बस्तियों के लिए पानी के ज़राए की दस्तयाबी का अंदाज़ा लगाने के लिए एक इंडेक्स ग्लेशियर कायम करना ज़रूरी है. ग्लेशियर पर किए जाने वाले साइंसी तजुर्बे 5 बरसों तक जारी रहेंगे, जिसके बाद TERI ग्लेशियर के सिकुड़ने की शरह को कम करने के लिए कुछ इक़दाम की सिफारिश करेगा. The observations and hydrological simulations from the Ladder and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glaciers, melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both basins. Since small glaciers have disappeared completely in some areas, thickness of glaciers is reduced by more than 2/3, while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley will have also dried up. So, दरियाई लदर और दरियाई सिंध दरियाई लदर और दरियाई सिंध के मुशाहदात और आबी मुताले से मुतल्लिक नकलें ग्लेशियर के पिघलने की बढ़ती हुई शरह के सबब बढ़ते हुए बहाव के रुझान को दिखा रहा है और बर्फ़ के चादरें दोनों तराई के इलाकों में काफ़ी कम हो गई है. कुछ इलाकों में कई छोटे छोटे ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो गए हैं. ग्लेशियर की मोटाई भी 2/3 से ज़्यादा कम हो गई है, जबकि वादी में बहुत से चश्मे जिनको ज़िंदगी ग्लेशियर्स की बदौलत मिलती है भी सूख गए हैं. Climate change has an impact only on environment but also on society and economy. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at a global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The change in the average global temperature during the last century was larger than can be explained by natural change alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. तो मौसम में आई तब्दीलियों का असर न सिर्फ माहौल पर पड़ा है बल्कि समाज और माशरत पर भी इसका असर पड़ा है. मौसम के बदलने के मुमकिन अंदाज को बिना किसी शक के आलमी सतह पर नाफिज किया गया है. इस हकीकत के साथ इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है. पिछली सदी के दौरान औसत आलमी दर्जा हरारत में आई तब्दीली इसे ज़्यादा जितना सिर्फ कुदरती तब्दीली के ज़रिए समझाया जा सके. साल 1885 जब से दर्जात को दर्ज किया जाना शुरू हुआ है, तब से पिछले 12 बरसों में से 11 बरस सबसे गर्म रहे हैं. Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir already evident and need to be assessed scientifically. For each sector, preliminary results from the research carried out at the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of the 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade. So,
जो ये रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों में मौसमी तब्दीली के असरार अभी से दिखाई दे रहे हैं और हर सेक्टर में इनका जायज़ा लेना लाजमी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में की गई तहकीकात के इब्तदाई नताइज ये बताते हैं कि मुस्तकबिल के तमाज़त के अखराज की सतह पर इंतज़ार रखते हुए 21वीं सदी के आखिर तक वादी के औसत दर्जात में 2 और 3 सेंटीग्रेड के बीच इजाफा हो जाएगा। Erratic snowfall, hotter summers. Erratic snowfall, hotter summers, climate variability, and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for the water resources. Planning hydropower development and population against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, the custodian of the water tower of Asia cannot afford to be complacent. We need to work with the other stakeholders for developing a robust energy strategy for the sustainable development of water sources in the region. The children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. गैर यकीनी बर्फबारी, ज़्यादा गर्म गर्मियों के मौसम, आबहवा की तग़यीर पज़ीरी और अमन तबखीर और दर्जा हरारत दोनों में तब्दीली रोज़ी रोटी पर असर डालेगा। इसलिए पानी के ज़राया पर मौसमी तब्दीली के असरात को समझना और इनका जायज़ा लेना, वसाइल की मनसूबाबंदी, पनबिजली का फ़रोग़ और सैलाबों से बचाव के लिए नहायत ज़रूरी है ताकि हम ज़मीन पर आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में ख़तरनाक ढंग से बढ़ते हुए पानी का बहरान बढ़ने के पस मंज़र में एशिया के ब्रिज ऑफ यानी पानी के टावर के रखवाले होने के नाते हम लापरवाह नहीं हो सकते। हमें दूसरे शर्त बंद स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने के लिए काम करना होगा ताकि इलाके में पानी के वसाइल की पायदार तरक्की पर काम किया जा सके। अगर हम अभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली नस्लों को हमारी अनदेखी का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अस्सलाम वालेकुम।